afternoon, everyone. Tomorrow we'll start our class with a Kahoot test. Kahoot test based on work, energy, and power. And you will get your pin. मैंने और साउंड ऑफ कर दिया सब लोग. स्टिल अगर कोई और आ रहा होगा, स्टिल वेट फॉर अ मिनट. कुंदन, okay, 4 players have joined. Riya, you are absent in today's maths class. Riya, आपकी दोनों क्लास छुट्टी है. प्रगति नेटवर्क इशू है. प्रगति नेटवर्क इशू है क्या? 7 players have already joined. सब लोग ज्वाइन करें पहले.
चलो we are done. Okay, 6 have all replied correctly, 4 have replied wrong. See, Ria, very good. 982, very good, Ria. Moving to next question. Question ध्यान से देख लो. A force acts on a 2 kg object so that position is given as function of time x equals to 3t square plus 5. What is the work done by force in first 5 seconds? Question clear होना चाहिए आपको. चलिए, moving to next options. ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है. आई रिमेम्बर. कोई बात नहीं, रिप्लाई टू नेक्स्ट वन. We have got 7 response. Question नहीं दिखा इसमें. Okay. Question नहीं दिखा. I don't think we have any option. 2 kg mass है. Someone can anyone say reply on x? X क्या है? I don't think is there any option to get back. कोई option है नहीं. X was 3t square plus 5. First 5 second में हमें बताना था. Work done. मैं आगे से थोड़ा और टाइम दे दूंगा क्वेश्चन में. X equals to 3t square plus 5. Find work done in first 5 seconds. 3t square plus 5 है. Work done in first 5 seconds. 6 have replied correctly. Someone couldn't get the question also. ठीक है प्रत्युष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन बहुत टाइम से देख रहा हूँ, सब लोग देख लो पहले. A time dependent force F equals to 60 acts on a particle of mass 1 kg. If the particle starts from rest, the work done by force during first 1 second will be. सब लोग क्वेश्चन को ठीक से देख लें. की नोट्स को लिख लिया करें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So 120 seconds has been given to the question. अगर सब लोग रिस्पॉन्ड कर दोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएगा. 6 people have already responded. 7, 8. Still 1 or 2 remaining. Still मुझे लगता है अभी भी 3 लोग रिमेनिंग हैं बचे हुए. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही है. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नहीं कराया भी है क्वेश्चन लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है. शुभांगी मैं अगली बार से ना क्वेश्चन थोड़ा और टाइम दे दूंगा. जेई में आया है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है. ये जेई का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, मैं अगली बार से थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा. चलो, आई थिंक स्टिल 20 seconds remaining. 19, 18.
अगर स्किप करूंगा then question will become invalid. अगली बार से मैं क्वेश्चन ज्यादा टाइम दूंगा. प्रगति सर क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए. प्रगति अगली बार से मैं और ज्यादा टाइम दूंगा. राइट 6 एवरेज बिल्कुल सही. 4.5 जो कॉमन क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन था ये. लेखिका अदिति. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ लोग क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं. होपफुली अब मैं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दूंगा. A body of mass m thrown vertically upwards attains a maximum height h. ठीक है. At what height will its kinetic energy be 75% of initial value? ठीक है. At what height will its kinetic energy be 75% of initial value? ये क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं दे सकता आपको टाइम इसके लिए. ठीक है. चलिए, I think I am moving to the next part. Vertically or downward, upwards attains a maximum height h. At what height will its kinetic energy be? 75% of initial. Question. Still we have got only 8 response. मेरी कोशिश होगी कि कहूत में आगे से स्लाइड्स वाले कम रहे. मैं खुद बनाऊंगा तो स्लाइड्स ना रहे, वो डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन. I think we are taking too much time. We are giving too much time. 120 seconds is too much. Okay. Great. So next. Great. Moving to next question. चलो देखो. ध्यान से. Mass 2 kg है. Falls from a height of 40 centimeter on a spring. बिल्कुल. A mass 2 kg falls from a height of 40 centimeter on spring with a force constant. Now spring is compressed by एक मास फॉल कर रहा है 40 सेंटीमीटर हाइट से विद अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 190 न्यूटन पर मीटर. द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय. सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम लोग. So question was of very less time. Question बहुत कम टाइम का था. So लेखिका has 5 correct answers in a row. Very good लेखिका. देखते हैं. Next slide. True or false? जल्दी. If work done by conservative force is negative, then with it, that force should increase. True or false?
I've got 8 answers. 5 have replied correctly. 4 have. Aditi, very good. Very good, Aditi. In first position. Next question. Kinetic energy of particle moving in a straight line varies with time t as k equals to 4t square. The force acting on the particle. I have given k equals to 4t square. The force acting on the particle. Let's सब लोग लिख चुके हो? नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं. K equals to 4t square. Eight people have replied. Still 81 seconds remaining. The question simple है. Okay. I've got the response. Moving to next question. Read the following question carefully. ध्यान से. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. बेसिक फॉर्मूला है ये. Work done by conservative forces. Five have replied correctly, but 4 have given wrong answer. इसमें तो आयुषी सिन्हा, इसमें तो आप k equals to 40 स्क्वायर था, तो आप वेलोसिटी से भी निकाल सकते थे. So Kundan moving up upwards. Very good. देखते हैं. I think we have last two questions, or I would say last two questions, or I would say last question. एक या दो क्वेश्चन हार्डली बचा है. अब सिंपल सा लॉजिक लगाएं. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर भी ऐसा है जो याद रहता है लोगों. 7 people have already replied. It took almost 20 minutes plus. I think 1 or 2 people remaining.
Going to next question. Final, Aditi, way ahead. Last question for the day. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो. Body is in stable equilibrium. याद करें, u क्या होता है? माइनस टाइम्स df अपॉन dx. I think we have Ayushi saying see. I don't think Ayushi लग रहा है काउच यूज नहीं कर पा रही है. Still 30 seconds. कुछ लोगों के रिप्लाई बचे हुए हैं. Near the podium. Lekika third. Congratulations. Piyush second. And Aditi first. Great work, Aditi. Shreya, Singh and Kundan. 4 and 5. चलो, congratulations to all of you. आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे. We are ending this couch session. We are ending this session for now. I think someone replied on chat. 16 क्वेश्चन था ना, नहीं लेगा 16 क्वेश्चन नहीं था, कुछ स्लाइड्स रिपीटेड थे, तो हार्डली 14-15 क्वेश्चन था. ठीक है, तो चलो आगे क्लास की बात करते हैं. ठीक है, आते हैं अपने आज के क्लास पे. ठीक है, जस्ट गेटिंग बैक टू आवर रेगुलर क्लास. क्वेश्चन शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन का. ठीक है, बाय द वे ये बायोलॉजी पीसीबी स्टूडेंट्स, हाउ वाज द शादाब सर क्लास टुडे? शादाब सर की क्लास कैसी थी आज? Has he started botany portion? बायो वाले सर, हाँ बढ़िया. ठीक है, तो वो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, अभी बॉटनी के पोर्शंस क्लियर करेंगे. ठीक है, तो बॉटनी का सिलेबस आपका बड़ा है, तो अब दोनों बायोलॉजी साथ चलेगा. ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैकेनिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं. जल्दी से लास्ट डे के 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ठीक है, पहला है रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं. 8-9 क्वेश्चन में करने हैं मात्र 40 मिनट में, तो भी 40 मिनट में तो हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. ठीक है, तो क्वेश्चन रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबने पढ़ा है. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम क्वेश्चन में पूछा है. चलिए कैलकुलेट करते हैं. आप पोल लॉन्च कर दे रहा हूं. I have launched. I'm launching poll. ठीक है, पोल लॉन्च कर दिया है. सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें.
three rings of mass m and radius r are so placed that they touch each other. Radius of gyration system about axis as shown in the figure is. You saying is answer something like D. देखते हैं बाकी लोग का आंसर इसमें. Can put on chat also. क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है. अपने को तीनों के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ऐड कर देना है. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. देन वी हैव टू डू mk स्क्वायर के इक्वेट कर देना है. I equals to I1 plus I2 plus I3. They have got 5 responses. Everyone try to calculate I1, I2 and then I3. I1, I2 आ गया. क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा. याद करिए I1 क्या होगा. सबसे पहले ये एक रिंग है तो परपेंडिकुलर एक्सिस से पास होने वाले एक्सिस पे क्या होता था mr स्क्वायर. ठीक है. तो डायमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2. बिल्कुल लेखिका आप टॉर्क पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से. आपके लिए क्लास बिल्कुल ही बेनिफिशियल है. ठीक है. टॉर्क आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है. आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हो सारे. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है आज की क्लास में. अगले क्लास में मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत आएगी. ठीक है. बट सिर्फ चेक कर लो. अब देख लो एक बार. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट के थ्रू क्या हो जाएगा. क्या ये mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर होगा क्या सब लोग. क्या ये 3mr स्क्वायर आ रहा है. 3mr स्क्वायर बाई 2 आ रहा था क्या सबको. सब लोग 3mr स्क्वायर बाई 2. I2 भी सेम 3mr स्क्वायर बाई 2. I3 अपना क्या होगा. वही सेंटर डायमीटर के क्रॉस है mr स्क्वायर बाई 2. तो तीनों को ऐड कर दीजिए. 3 3 6 और 1 7 7mr स्क्वायर बाई 2. क्लियर है. अगला आता है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा. टोटल मास विच इज इक्वल टू 3m into k square equals to moment of inertia 7mr square by 2. क्लियर है. तो क्या अपने पास k स्क्वायर आ जाएगा. क्या अपने पास k स्क्वायर कितना आ जाएगा 7/6. mm कैंसिल हो जाएगा. mm कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा r स्क्वायर. तो फाइनली k इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए √7/6 r. ठीक है. मेजॉरिटी लोगों का आंसर डी ही था. बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू कुडंट रिप्लाई. छोटा आर होगा. ठीक है कोई बात नहीं. 4 को एंड कर रहा हूं. क्या सबको ये क्वेश्चन आया समझ में. क्या हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. कैसे मैंने mr स्क्वायर बाई 2 लिया. अगर थोड़ा सबको लगता है कि फास्ट है अगर तो सिंपल समझो कि एक रिंग के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता था mr स्क्वायर. अगर इसके डायमीटर के क्रॉस निकालें परपेंडिकुलर एक्सिस टर्म कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2. अगर इस एक्सिस के पैरेलल में किसी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो कौन सा एक्सिस लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2. क्लियर है. मूविंग टू एक और क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल है. थोड़ा सोचने वाला है और सब लोग कर सकते हो. A solid sphere of radius r is motion I about its geometrical axis.
if it is melted into a disc of radius small r and thickness t, then its moment of inertia about tangential axis is equal to I. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें. पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं. दोनों सिनेरियो को कंपेयर करिए पहले, तभी क्वेश्चन बनेगा. गॉट फर्स्ट आंसर, बाकी लोग सॉल्व करें. They have got 2 answers. A solid sphere of radius r, moment of inertia I, what is geometrical axis? ठीक है, सब लोग बताइए सबसे पहला कौन सा फंडा लगेगा स्मॉल आर निकालने के लिए. स्मॉल आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम से. देखते हैं. सबसे पहला आपका m है और r है, तो कितना हो जाएगा? 2mr स्क्वायर बाई 3 नहीं, आई थिंक 5 है ना. चलिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है. हमने क्या किया, उसी वॉल्यूम से भैया आपने कहा बिल्कुल 2/5 mr स्क्वायर होगा. ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे बॉडी पे आते हैं. दूसरे बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. हम जानते हैं कि कोई डिस्क अगर इस तरह का हो तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालना हो तो ये सिंपल कुछ नहीं होगा, mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा ये 3mr स्क्वायर बाई 2. 3mr स्क्वायर बाई 2. क्लियर है क्या? मैं दोनों को इक्वेट कर दूं क्या? सीधा सीधा मैं क्या सीधा सीधा दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर दूं क्या? कितना आएगा? 2mr स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू 3mr स्क्वायर बाई 2. क्लियर है क्या? दोनों अगर इक्वेट कर देंगे सब लोग, मैंने कहा कि 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में मोमेंट तो थिकनेस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो एक का 3mr स्क्वायर है, एक का 3mr स्क्वायर 5, दोनों का मास सेम होगा. कुछ भी कर ले, इक्वेट करेंगे तो मास क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो 2 to 4 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर इक्वल्स टू 4/15 r. क्लियर है? तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2/√15 r. क्लियर है क्या? सबको a आ रहा है क्या? नहीं जरूरत है, छोटा r कहाँ निकालना. कुछ लोग कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम करने के चक्कर में नहीं, मास दोनों का क्या होगा? सेम. क्लियर है? मास दोनों का सेम. हमने दोनों का मास सेम रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में निकाला, और हमने कहा कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 2/15 √r. क्या सबको क्लियर है मेरी बात? क्या सबको ये बात क्लियर है? 4 लोगों ने इसका सिर्फ आंसर दिया था, ओनली 4 कुड रिप्लाई दिस. तो हमें थोड़ा सा रिस्पांस को बढ़ाने की जरूरत है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. A uniform rod of mass small m and length capital L is suspended with 2 massless strings as shown in the figure. If the rod is at rest in a horizontal position
the ratio of tension in two strings is? वो कैपिटल T1 is to कैपिटल T2 है. चलिए, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन रोटेशन का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है. We have got first answer. संचित, संचित सही लग रहा है. So we have got two correct answers. Take your time, कोई जल्दी नहीं है. हाँ, मुझे दिख गया था. तो आप लोग एक ही फोन यूज कर रहे थे क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम. बोलिए, क्लियर है सब लोग? कोई बात नहीं संचित. खैर, सब लोग देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो बॉडी है वो ना ही मूव कर रही है ना ही रोटेट कर रहा है. यानी बॉडी के पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. तो बॉडी के पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सीधा समझते हैं. कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल्स टू 0. अब नेट फोर्स इक्वल्स 0 क्या होगा? mg. I don't know why I have written mg by 2. क्लियर है? क्या होगा? mg. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया. रिया बिल्कुल सही है, रिया 100% करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. तो हमने लिखा T1 plus T2 equals to mg. लेकिन बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, यानी किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है कि नेट टॉर्क क्या है? 0. तो मैं किसी भी फोर्स वाले पॉइंट को चूज कर लेता हूँ. मैंने इसको चूज कर लिया, इस पॉइंट, इसको O मान लेते हैं, O. ठीक है. तो टॉर्क अबाउट O, तो नेट टॉर्क अबाउट O होगा, वो क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि बॉडी को मूव नहीं करना. तो बॉडी किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होना चाहिए? 0. अब टॉर्क 0 होना चाहिए इस पॉइंट के बाद. तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं. तो एक लग रहा है T1, दूसरा लग रहा है टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg इक्वल्स टू 0. पहली बात, T1 की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा, बिकॉज उसका उसी पॉइंट पे वो एक्ट कर रहा है. R क्या हो गया? 0. दूसरा, T2 की वजह से, क्या कह सकते हैं? ये लेंथ कितना है? 3l/4. क्लियर है? 3l/4. T2 इंटू 3l/4. डायरेक्शन क्या है देख लेते हैं. याद करिएगा डायरेक्शन. हमेशा जिस पॉइंट को निकालना उससे एक वेक्टर बनाते हैं, आर वेक्टर. जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, आर वेक्टर, और ऊपर में क्या है? फोर्स है. तो आर क्रॉस एफ, यानी इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. कोई बात नहीं, कोई भी ले लेते हैं. तो हो लिया. तो इतना मेहनत कर दिया तो फायदा क्या? काफी मेहनत हो गई है. तो कितना हो गया? T2 इंटू 3l/4. अगला, mg की वजह से
ये mg के वजह से गौर से देखेंगे तो ऐसे आ रहा है कुछ, यानी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस mg इंटू L बाई 4 इक्वल्स टू 0, यानी क्या आ गया, T2 इंटू 3L बाई 4 माइनस mg इंटू L बाई 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? L बाई 4 कैंसिल हो गया, 3T2 माइनस mg इक्वल्स टू 0, तो T2 आ गया mg अपॉन 3, तो T1 अपने आप आ गया 2mg अपॉन 3। सॉल्व हो जाएगा क्या? सर सॉल्व हो जाएगा। सर हम लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ रॉड से बैलेंस कर देते तो वहां तो सीधे रेशियो आ जाता ना T1/T2 का। जैसे बता सकते हैं क्या कैसे? mg के वोट दे रहे थे क्या? यस सर, mg के वोट mg दे के रहे अबाउट टॉर्क बैलेंस थे। कर हाँ देंगे। सही है सही है। देखो मैंने कैलकुलेशन करके मेहनत किया है, आप करोगे तो आपको वैसे भी एक लाइन नहीं लगना चाहिए इसमें, टाइम तो मैंने लिया, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना? ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स और टॉर्क पे ही है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सब लोग तो बेसिक लॉजिक पे बेस्ड है क्वेश्चन ये, जो उम्मीद है आप बेसिक लॉजिक लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं अगर कुछ लिखना होगा इस टाइम हिंट में तो मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। शिवांगी गुड, देखते हैं। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक प्रिंसिपल। ये टॉर्क वर्क का क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सही है संजीत, रिया बिल्कुल सही है, पोल रिस्पॉन्स करती है। संजीत सिंह 13%। अच्छा बैटरी वो बहुत काफी चल जाएगा, अभी पूरा क्लास चल जाएगा। ठीक है, तो देखो टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ है। ठीक है, तो टॉर्क अगर ए क्रॉस बी है, अगर कोई वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू अगर होता है ए, बिल्कुल सही प्रत्युष, ए क्रॉस बी होता है, सी वेक्टर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और सी वेक्टर जो होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता ही क्या है, दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सी डॉट ए भी क्या होगा, 0, और सी डॉट बी भी क्या होगा, 0। यानी इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो टॉर्क होगा वो आर के साथ भी डॉट करेगा 0, और टॉर्क जो होगा वो एफ के साथ भी डॉट क्या होगा उसका, 0। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर 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 है सबको? आई थिंक आई जस्ट फील कि सबको आ गया समझ में। कैंसर क्या होना चाहिए, कैंसर होना चाहिए बी। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
two uniform rods of equal length but different masses are rigidly joined in form L shape about O. If in equilibrium the body is in the shown position, the ratio of M by M will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम में है. अगेन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन. कर दूंगा. चलिए रिया सेइंग डी. तो अब तक एक रिप्लाई आया है. प्रत्यूष सेइंग सेम डी. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल तो यू नो कि होगा इक्विलिब्रियम, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपको प्रूव करना है. ट्रांसलेशनल तो ऊपर का हिंज बैलेंस कर ही देगा, पर रोटेशनल कैसे बैलेंस होगा ये सोचना है हमको. ठीक है. ये आपका 30 डिग्री पे है. ठीक है. आपका आर वेक्टर इसमें कितना है? आर वेक्टर किधर है? आपका आर वेक्टर होगा इधर. फोर्स वेक्टर है इधर. खुद सोचिए कि ये कितना एंगल होगा. मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को अगर अपने को सॉल्व करना है तो अपने को बहुत ही क्लियरली दोनों की वजह से टॉर्क निकालने पड़ेंगे. पहला वाला की वजह से देखते हैं. 30 डिग्री वाले पे. ठीक है. 30 डिग्री पे क्या है? mg है. क्लियर है. ये 30 डिग्री है. सिंपल बात है कि ये भी कितना होगा? 30 डिग्री. क्लियर है. ये भी क्या होगा? 30 डिग्री. ये r वेक्टर है, ये आपका f वेक्टर है. दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f, या कह सकता हूं rf साइन थीटा. तो कितना हो गया? L/2 r हो गया. f कितना हो गया? mg हो गया. और साइन थीटा कितना हो गया? साइन 30 हो गया. क्लियर है. L/2. सिमिलरली ऑपोजिट साइड, दूसरे साइड के लिए देखिए. सिमिलरली दूसरे साइड के लिए देखते हैं. ये भी अगेन ये 60 डिग्री था, तो ये भी कितना आना चाहिए? 60 डिग्री. ये r वेक्टर है, ये आपका mg है. सिंपल क्या होगा? टॉर्क इक्वल्स टू r इंटू mg इंटू साइन 60. तो कितना हो गया? L/2 mg साइन 60. क्लियर है. हमारे पास सिंपल से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट होना पड़ेगा. सिंपल हम जानते हैं कितना होगा? L/2 mg साइन 60 इक्वल्स टू L/2 mg साइन 30. क्लियर है. L/2 mg खत्म करते हैं. अपने पास क्या आ रहा है? अपने पास आ रहा है L/2 mg साइन 60 इक्वल, अपने को स्मॉल m. ये अपना क्या है? mg कैंसिल नहीं होगा, L/2 और g कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा? m साइन, बिल्कुल m साइन 60 इक्वल्स टू कैपिटल M साइन 30. मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे. ये m दोनों कैंसिल होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है. सही है. तो ये अपना क्या, यहाँ पे कितना है? अपना स्मॉल m, और यहाँ पे अपना क्या है? कैपिटल M. तो अपने पास फाइनली m बाई
m by m इक्वल्स टू इधर आएगा तो ये इधर आएगा sin 60 by sin 30 आएगा। sin 60 by sin 30 कितना होगा √3/2 by 1/2 कैंसिल हो गया कितना आ गया √3। क्लियर है क्या √3 क्लियर है सबको इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए डी डी यानी m by m का रेशियो कितना करो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा ठीक है देखने में टफ लगे पर है बहुत इजी मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इससे फोर्स और टॉर्क दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन थोड़ा इजी दिया गया है और बेहतर हो सकता था सर्कुलर शेप की वजह से क्वेश्चन इजी होगा we have to complete 3 more questions at least in the day ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है everyone respond हमारे पास अभी तक एक आंसर था प्रत्युष का we have got 2 answers संचित बी आ रहा है प्रत्युष देखें प्रत्युष ठीक है we are saying C प्रत्युष संचित आई थिंक आपने बी कहा है प्रत्युष सिंह सी ही होना चाहिए देखते हैं प्रत्युष सी होगा कि होना चाहिए देख लेते हैं अभी ठीक है मुझे लग रहा है कि नेट फोर्स आपका 500 न्यूटन होगा इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए बिकॉज गौर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका 4 फोर्सेज लग रहे हैं 400 100 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स जो है वो आपका 300 न्यूटन क्लियर है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स जो आपका है वो कितना है 400 न्यूटन तो नेट फोर्स कितना हो गया 500 न्यूटन अब 500 न्यूटन है तो ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ गौर से देखते हैं ये है थीटा तो tan थीटा कितना होगा 4/3 यानी tan थीटा 4/3 यानी थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 53 डिग्री क्या क्लियर है सबको थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री बट थीटा क्या होना चाहिए विद द हॉरिजॉन्टल थीटा होना चाहिए विद द हॉरिजॉन्टल यानी जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे आई है अगर मैं बोलूं वो आपका विद द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए 53 डिग्री मैं सिंपल सी बात करता हूं मेरे पास ये पॉसिबल ही नहीं है ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है मेरे पास पॉसिबिलिटी में कुल मिला के 3 बचते हैं मैं सिंपल सी बात करूंगा
ये अपना, अगर मैं बात करूं, अगर इसको ऐसे, कह रहे 500 न्यूटन क्या 53 डिग्री बना रहा है, तो ये 37 है, सिंपल, ये 37 है, ये 90 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37, ये भी नहीं होगा खुद से। अब मैं 53 डिग्री है, मैं खुद से देख रहा हूँ इसको, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 53। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है क्या? सी। अब एक सवाल आया है कि आपने आपने जो पूछा है, संचित डाला था बी, उसमें एक कंफ्यूजन प्रॉब्लम है उसका। आपने उसके हिसाब से रोटेशनल उसको देखिए, ट्रांसलेशनल इफेक्ट तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ रोटेशनल इफेक्ट भी सेम होना चाहिए, पर आप गौर से देखते हो तो रोटेशनल इफेक्ट से ठीक ऑपोजिट आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी नहीं हो सकता। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अगेन बड़ा कॉमन क्वेश्चन सही है, बट अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है का, अच्छा एप्लीकेशन है। बहुत ही इजी और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लिया तो ये एक लाइन में नहीं लगेगा। डोंट ट्राई टू सॉल्व, सॉल्व करने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सही है प्रत्युष। Keep your cool and just look at the question. नहीं शुभांगी, शुभांगी एक बार फिर से देखें। रिया 100% करेक्ट, संचित बिल्कुल सही, शुभांगी बिल्कुल सही। क्वेश्चन का बड़ा ही स्ट्रेट एंड सिंपल लॉजिक है, कुछ भी करो अल्फा सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो अगर ए का क्वेश्चन में दे रहा है कि ए का एक्सेलरेशन, ए का अगर दे रहा है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, अल्फा इंटू रेडियस। क्लियर है क्या? अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, एक्सेलरेशन अपना 5। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अल्फा आ रहा है 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? अल्फा क्लियर है?
अल्फा अगर आ गया तो आप दूसरे वाले का एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा, रेडियस 1 है, कितना हो जाएगा 5.2 मीटर पर सेकंड। हाँ आज सचित मैं बस निकाल ले रहा हूँ तुम्हारी क्लास, तुम्हारी क्लास तो मुझे जरूरत नहीं, मैं बहुत चार्जर मेरा बहुत दूर है यहाँ से। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन को करो और छुट्टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, so don't do this, do this question, ठीक है, do this question। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। A uniform rod is free to rotate in a vertical plane about fixed horizontal axis O. The rod begins rotating from rest from its unstable equilibrium position. वो लास्ट में छोड़ा है बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप घर पे कर लेना, ठीक है। When it has turned to theta, its angular velocity omega is, we have got first answer। आप चैट बता सकते हो हाउ विल यू डू द क्वेश्चन, कौन सा एक प्रिंसिपल है जिसपे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। संचित बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कॉन्सेप्ट है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रॉड है, रॉड फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्यों नहीं इनिशियल लिक्विड करते हैं जल्दी से। Rod starts rotating from its unstable equilibrium position. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा? फिगर पे फोकस मत करिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक रॉड वर्टिकल मोशन में मूव कर सकता है, वर्टिकल मोशन में एक रॉड मूव कर सकता है। रॉड एक वर्टिकल मोशन में मूव कर सकता है। अब इसमें कौन सा दो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मुझे ये बताइए। मैं नाम दे रहा हूं, मुझे एक एक करके मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है आपसे। कौन सा दो पोजीशन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा।
एक रॉड को अगर ऐसे मूव कराएंगे तो कौन सा पोजीशन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा? ए बी सी डी, मैंने 4 नाम दिए हैं, आप बताइए विच 2 पोजीशन? रिया इज सेइंग सी, रिया कह रही है कि सी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कोई पोजीशन इक्विलिब्रियम नहीं है। माय क्वेश्चन इज विच अदर पॉइंट इज इक्विलिब्रियम? क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है। शुभांगी सेइंग सी, सी तो चलो इक्विलिब्रियम है ही, ठीक है, अगर आंसर आप नहीं कह रहे हो। क्या ए इक्विलिब्रियम नहीं है? क्या ए इक्विलिब्रियम नहीं है? क्या ए भी इक्विलिब्रियम है? यानी हमारे पास कुल मिला के 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैं थोड़ा ऊपर के स्पेस का यूज करता हूं। हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक रॉड का ऐसे, एक रॉड का ऐसे, ये फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट है, और दूसरा ऐसे। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? Which one is stable equilibrium and which one is unstable equilibrium? Which one? ऊपर वाला या नीचे वाला? मैं ए, अब मेरे पास बचता है ए और सी। कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल? ए इज अनस्टेबल, क्लियर है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल, क्योंकि थोड़ा भी मूव करोगे ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अनस्टेबल। और ये कौन सा है? स्टेबल, क्लियर है। यानी हमारा जो रॉड है वो रॉड यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, क्लियर है, starts rotating from rest from its unstable equilibrium position। फिगर सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। तो क्या ये रॉड यहां से यहां आ गया है? क्या ये रॉड यहां से यहां आ गया है ना? अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, अब सॉल्व कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। हमारे पास 2 तरह की एनर्जी है, एक तो अपने पास है रोटेशनल एनर्जी और दूसरा है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी है ही नहीं। तो अपने पास सिंपल सी बात है, किसी वक्त पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मस्ट रिमेन कांस्टेंट, क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात है, शुरुआत की केस की बात करता हूं, ठीक है, गौर से देखते हैं। शुरुआत में पोटेंशियल, सिंपल देखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में 1 है और शुरुआत में मान लेते हैं कि शुरुआत में तो कोई भी है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल्स टू हाफ आई, आपको पता है क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। यानी सिंपल कह सकते हैं कि ml स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्लियर है क्या? ml स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है देख लेते हैं ना। ये अपना ये और ये रॉड कितना मूव किया है, ठीक है, इसका लेंथ कितने, इसका पहले हाइट कितने पे था? इसका हाइट था l/2 पे, और अभी इसका हाइट कितना होगा? तो गौर से देखते हैं, ये मेरा थीटा है और ये पूरा L है, तो L cos थीटा, इसके पास कितना कंपोनेंट है? L cos थीटा है, इसके पास है L cos थीटा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी में पहले अगर हाइट था m मान लेते हैं, g मान लेते हैं, पहले हाइट था L/2 हाइट था ग्राउंड से, अब कितना है? -L/2 cos थीटा। बोलिए सही है क्या? सबको क्लियर है? पहले जो mg था वो अब कितना हो गया? पहले L/2 हाइट पे था, अब वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? L/2 cos थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, m कैंसिल कर देते हैं, m कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा अपने पास? L स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g टाइम्स L भी कॉमन ले लेते हैं, L भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या लिख सकते? L/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? मैथ्स के स्टूडेंट जानते हो कि 1 माइनस कॉस क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको जानना चाहिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लोग के पास एक एल कैंसिल हो गया, ये 2 3 से कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, एल ओमेगा स्क्वायर बाई 3, एल ओमेगा स्क्वायर बाई 3 इंटू जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? अब जल्दी से ओमेगा निकालते हैं, सिंपल क्या होगा, 3 2 6 जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई एल अंडर रूट। क्लियर है क्या? सिंपल, थीटा बाई 2 क्या हो गया, अंडर रूट 6 जी बाई एल साइन थीटा बाई 2। क्लियर है क्या? क्या सबको ये बात क्लियर है? सिंपल, हमने क्या लगाया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? चलिए, आई थिंक दिस इज द एंड फॉर द क्लास। हमने आज हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको होपफुली क्लास के एंड में। नेक्स्ट क्लास में सर सफारी कैसा काम कर रहा है? ठीक काम कर रहा है, सफारी वर्किंग है, ठीक है, सफारी सही है। तो सर कुछ बोलना था, प्रगति कुछ बोलिए। हाँ ठीक है, बाकी ये रोटेशन पार्ट खत्म है। नेक्स्ट रोटेशन के 2 क्लासेस शायद पीसीबी वाले को मिस करना पड़े। क्रोम से अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्रोम इज बेस्ट, आई ऑल्सो यूज क्रोम। ये सर ये बता दीजिए प्राइस है क्या, आप तो बोल रहे थे कि क्लास के बाद। चलो ठीक है, सो आई थिंक मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया था, ये टोल्ड। सो कल के संडे वाले टेस्ट के लिए इट वाज प्राइज रिवॉर्ड जो है आपको मिल जाएगा, आपको प्राइज रिवॉर्ड इट विल बी अवॉर्डेड। आपके पास घर पे कॉल जाएगा बाय टुमारो, ठीक है? तो कल तक आपके घर पे कॉल जाएगा एंड यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स, ठीक है? सो व्हाट मैं बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो फर्स्ट प्राइज वाज, ये आज के लिए नहीं है, ये संडे वाले के लिए। फर्स्ट प्राइज वाज 1000, second because it's best way to transfer, second prize was 750 rupees, ठीक है? I know I just couldn't, पता नहीं मैं क्यों अनाउंस नहीं कर पाया, ठीक है? थर्ड was 500, 11th guys were knowing, ठीक है? Yeah, so through any means you will get money tomorrow, ठीक है? And congratulations to all who were awarded, ठीक है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल संचित, तो congratulations everyone. So let's end the class for today. और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, we will get by tomorrow morning, ठीक है? चलो, have a nice day guys. ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसमें ये फर्स्ट सेकंड में हटा देता हूँ पहले, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ बोलिए सर। बोलना था सर कि 11th वाला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक था ना सर, वो क्लियरली समझ नहीं आया सर। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पूछ रहे हो, बता रहे हो, 11 में किसने पढ़ाया? तरुण सर ने क्या? नो सर, प्रतीक सर ने पढ़ाया था। कब पढ़ाया है ह्यूमन फिजियोलॉजी? सर अभी तो कंप्लीट हुआ यूनिट, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी कंप्लीट करके सर ने गया। अच्छा, सो क्या सिलेबस के पेस की वजह से समझ में नहीं आया क्या? नो सर, मतलब प्रतीक सर ने सर ज्यादातर लिखवाया है, और मतलब वो जो टॉपिक है सर, वो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर वो थोड़ा बोरिंग टाइप था, तो वैसे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए और नहीं समझ आया। प्रगति डूइंग वन थिंग, अभी आज जी 2 टीचर्स आपके बायोलॉजी के पढ़ा रहे हैं, अब मैं तीसरा बायोलॉजी के टीचर को लेके आऊंगा तो अगेन बहुत वो हो जाएगा। तो अभी आपके तरुण सर अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है? वो ठीक है। तो शादाब सर माइट हैव स्टार्टेड बॉटनी पार्ट। यस सर, ठीक है? सो इसका एडिशनल क्लास, हाँ संचित, नहीं संचित, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, इसके लिए एटलीस्ट थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बिकॉज अगर आपको तुरंत पढ़ना है देन आई विल अरेंज एडिशनल क्लासेस, और टॉपिक वाइज पढ़ना है अगर, देन आई कैन अरेंज एडिशनल क्लासेस। तो क्या पूरा चैप्टर ही पढ़ना है दोबारा? तो yes, सर उसमें समझ ही नहीं आया सर, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक जितने भी थे। कोई बात नहीं, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन हमें दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा,
तो कितने दिन का चैप्टर होगा ये? सर मतलब एक टॉपिक के लिए सर कम से कम 10 पीरियड्स तो लगेंगे। तो अगर 230 का है तो 5-6 लेक्चर्स तो लगेंगे एक शिवांगी चैप्टर के दास, लिए। so let's why not do this कि एटलीस्ट बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा आपका पीछे है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस, दोनों बायोलॉजी की क्लासेस लगेंगी आपकी, तरुण सर की भी। तरुण सर का जूलॉजी पार्ट, व्हाट आई थिंक कि जूलॉजी पार्ट में 50% पार्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक है? वो ही इज इन यूनिट 2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है? तो मैं ना एटलीस्ट सर से बात करता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है ना, तो यूनिट है ना यस 30, सर। मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? आपको मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? यस। चलिए, ओके ब्रदर, चलिए।